विचार और मेरे मुंह के शब्द आपको लुभावने होने पाए। I ask this in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. So, Pastor Stanley gave me Genesis chapter 22 verses 1 to 14 about a month back. और एक महीने पहले पास्टर स्टैनली ने मुझे उत्पत्ति 22 में से प्रचार करने के लिए बोला। And many of you may know that this is actually a very famous passage, not only in the book of Genesis, not only the Old Testament, but across the entire Bible. और आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि पूरे बाइबल में ही ये जो वचन का भाग है बहुत ही मशहूर है और महत्वपूर्ण है। So when we look at Genesis chapter 22, it's also important to look at Genesis chapter 21. और जब हम उत्पत्ति 22 में देखते हैं तो 21 भी देखना बहुत ज़रूरी है। That's because if we don't take the context in view, we will come up with wrong interpretations. क्योंकि अगर हम संदर्भ को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो फिर हम गलत अर्थ को निकाल बैठेंगे। So let me just ask a few questions. If you look at both chapter 21 and chapter 22, what is chapter 22 about? अगर मैं आपसे इस सवाल को पूछूं कि जब आप 21वें अध्याय और उत्पत्ति 22 को देखते हैं तो इसका अर्थ क्या है, इनके क्या बता रहा है? Who is this passage about? और ये जो वचन का भाग है किसके बारे में है? This passage is about God and Abraham. और ये जो अध्याय वचन का भाग है ये परमेश्वर और अब्राहम के बारे में है। What is this passage about? और ये किस विषय के बारे में है? It is about testing. और ये परीक्षा के बारे में है। Pariksha. You heard it correctly. Pariksha. और ये परीक्षा के बारे में है। And what are the events taking place here? और यहाँ पर किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं? In chapter 21, 21वें अध्याय में God honored the promise to Sarah. परमेश्वर ने जो वायदा सारा को दिया था उसको पूरा किया। And after nearly 25 years, God gave him the son that he wanted. और कम से कम 25 साल के बाद उनको एक संतान, एक पुत्र दिया। We also read that Abraham, on the instigation of Sarah, kicked out the first wife. और हम जानते हैं कि अब्राहम ने सारा के कहने पर जो उसकी पहली पत्नी थी उसको घर से बाहर निकाल दिया। And in the last section of chapter 21, Abraham has a massive military victory, so he is established in the land. और वचन के आखिरी भाग में हम देखते हैं कि अब्राहम जो है वो एक बड़ी विजय को प्राप्त करता है। And where are the things in this chapter taking place? और ये घटनाएं कहाँ पर हो रही हैं? Chapter 21, if you look at verses 31 and 34, it says, "Therefore he called that place Beersheba, because they were the two of them who took an oath. And Abraham sojourned in the land of the Philistines for many days." 31 and 34, but basically it's in the south of the peninsula of Israel. और इज़राइल के दक्षिणी भाग में जो घटनाएं हो रही थी। And why are the things in chapter 22 recorded? और क्यों 22वें अध्याय की चीजों को यहाँ पर रखा गया है? It is basically to test Abraham and to see what he was really focused on in his life. और वो इस बात को देखने के लिए है कि अब्राहम किन विषयों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करता था। And how does God do this testing? और किस प्रकार परमेश्वर इस परीक्षा से उसको लेके गुजरता है? God tested the dearest thing in all of Abraham's life. और परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर एक परीक्षा रखी। As in India, in the Middle East, a son is very, very important for the lineage of a family. और जैसा भारत में है वैसा ही खाड़ी के देशों में भी एक पुत्र जो है एक परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। So the son was the focus of God's testing of Abraham. और अब्राहम जिस प्रकार की परीक्षा के जिस परीक्षा से होकर गुजर रहा था उसमें एक पुत्र के ऊपर वो परीक्षा रखी गई थी। Now, I generally believe that a lot of things in the sermons are forgotten. So if you forget everything, just go to chapter 22 verse 1. That's a summary. और अगर मैं जानता हूं कि प्रचार में बहुत सारी बातों को हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप सब कुछ भूल जाएं, उत्पत्ति 22 का आप एक बार देख लेंगे तो आपको सब याद आ जाए। You'll see the wisdom of God. और आप देखें परमेश्वर का जो ज्ञान है, बुद्धि है। Just read chapter 22 verse 1. I'll read it out. Now it came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. उत्पत्ति 22 का कहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। Now we can divide this passage basically into two sections. One is before the test
One is during the test and one's after the test. इस वचन के भाग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद। So the Bible is being very truthful to us. It's not hiding anything. This passage is about testing. और बाइबल जो है बड़े सच्चाई से हमें बता रही है कि ये जो भाग, वचन का भाग है, वो परीक्षा के बारे में है। Now the word testing makes us uncomfortable. और जो परीक्षा है वो हमें सच में बहुत ही परेशान कर देती But है। I know some of you work in the software sector and some of you are in the pharmacy sector. और आप में से कुछ लोग सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कुछ लोग फार्मेसी या दवाइयों के डिपार्टमेंट में काम करते And हैं। after a software engineer does the coding, they send it for a thing called beta testing to people outside the company. और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो कोड को बनाने के बाद वो बीटा टेस्टिंग के लिए भेजता है। And the people who actually use the code actually test out the software and they get back to the developers with a lot of errors, things called bugs. और जो इस चीज की परीक्षा करते हैं वो देखते हैं कि इसमें क्या गलती है, क्या खराबी है, और वो बनाने वाले को वापस भेज के इसे बताते हैं। The medicines that you buy from the pharmacy, they go through extensive testing. और जो आप दवाई या फार्मेसी से खरीदते हैं वो बहुत सारी परीक्षाओं से होकर गुजर कर ही हमारे पास आती है। You may be aware that the COVID vaccines were rushed because they did not go through the long clinical trials that they normally go through. और ये कोविड की जो वैक्सीन थी, गोइंग लाइव, कोविड की जो वैक्सीन थी वो बहुत जो परीक्षाओं से होकर नहीं गुजरी थी और हमको दे दी गई थी। But a lot of medicines do go through testing. और बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो बहुत परीक्षाओं से होकर गुजरती हैं। Please raise your hands if you are willing to go from New Delhi to the United States by a pilot who has not undergone an FAA test. और आप में से कोई अगर है जो हाथ उठाएगा ये बोल के कि मैं एक ऐसे जहाज में जाने के लिए तैयार हूं, दिल्ली से अमेरिका तक, एक ऐसे पायलट जिसने परीक्षा नहीं लिखी है। I believe what he's saying. और मैं मानता हूं कि वो जो कह रहा है मैं उसको विश्वास कर लूंगा। He says he's very confident. वो कहता है कि मेरे में बहुत आत्मविश्वास है। Will you step into that plane? क्या आप उस प्लेन में कदम रखेंगे? What's the reason? इसका क्या कारण है? Why? क्या कारण है? Any reasons why? इसका क्या कारण हो सकता है? You believe in testing. That's the basic reason. You believe that what happens after a test can be trusted. आप Right. जानते हैं कि अगर वो परीक्षा से होकर गुजरा है तो फिर उसके ऊपर भरोसा रखा जा सकता है। So notice that God is very blunt about why he is going to test Abraham. और आप देखें परमेश्वर इस बात में बहुत ही सटीक है कि वो क्यों अब्राहम की परीक्षा ले रहा है। And there's a lot of things that you and I can apply in our lives when we go very carefully through how Abraham was tested by और आप God. देख सकते हैं अपने जीवन के द्वारा भी क्यों, किस प्रकार अब्राहम की परीक्षा ली गई। In short, God is testing Abraham about whether he loves God or the gifts God Wow. gives. आप अगर जल्द सारांश में देखें, अब्राहम की इसलिए परीक्षा ली जा रही है कि वो या परमेश्वर से प्यार करता है या परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों से प्यार करता है। How do we know that? Verse 2. और आप देखें उसकी दूसरी आयत में, Take now your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। Now what is Abraham's response? अब यहाँ पर अब्राहम का जो प्रत्युत्तर क्या है? Abraham is silent. अब्राहम जो है बिल्कुल शांत है, No questions, उसके पास कोई सवाल नहीं no response, और किसी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं no complaining. और किसी प्रकार की कोई जो कंप्लेन भी नहीं कर रहा, He even does not say praise the Lord. और वो वहां पर जय मसीह की भी नहीं बोल रहा। He is just obeying. How do we know that? Verse 3. वो केवल आज्ञा मान रहा है। हम कैसे जान सकते हैं? तीसरी आयत में देखें, Verse 3. Abraham rose early in the morning. Abraham saddled the donkeys. Abraham organized the young men. Abraham does the manual labor for organizing the sacrifices. Abraham chops wood. सो अब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। Ladies and gentlemen, ministry is not glamorous. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं कि जो सेवकाई है वो बहुत चकाचौंध वाली बात जीवन नहीं है। Someone has to
organize the chairs. और किसी को कुर्सियां लगानी पड़ती हैं, Someone has to dust it. और किसी को उसको झाड़ना पड़ता है, Someone has to do audio visual checking. और किसी को देखना पड़ता है कि सब अच्छे से दिख रहा है कि You नहीं। need a guitarist, a keyboard player, and somebody on the drums. आप में से जो भी वाद्य यंत्रों को बजाते हैं उसको देखना पड़ता है, Somebody has to call the preacher. और किसी को प्रचारक को बुलाना होता है, Preacher has to agree. और प्रचारक को तैयारी करनी पड़ती Sometimes है, preacher will disagree and delay. और कभी कभी प्रचारक मना कर देगा। Okay, so ministry is not glamorous. It's not easy. और इसीलिए सेवकाई जो है वो आसान नहीं है। This is what you notice God the Holy Spirit focusing on in the mundane details of Abraham's obedience. देखिए परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है अब्राहम की जो जिस प्रकार वो आज्ञाकारी हो रहा है उसमें कुछ खास बातों को बताता है। So a lot of your life as a Christian will be spent doing boring things. आपका मसीही जीवन बहुत सारा जो समय है कुछ बड़ी बोरिंग चीजों में करते हुए गुजरेगा। And you will also notice that a lot of time will pass. और आप देखेंगे कि बहुत समय भी गुजर जाएगा। How do you know that from this passage? These are statements I am making. I am not making these statements ऐसे हवा में मैं बात नहीं कर रहा. Look at verse 3 and verse 4. और मैं यूं ही कुछ बातों को नहीं बोल रहा, लेकिन बाइबल से देखिए 3 और 4 आयत में। Verse 4 says, On the third day Abraham raised his eyes and saw the place from a distance. तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। In other words, for at least 2 entire days, the Holy Spirit has noticed that this guy has kept his mouth shut. और He's silent. और देखें पूरे 2 दिन के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इस देखा है कि इस व्यक्ति ने अपने मुंह को बंद रखा है। There's nothing recorded about what Abraham is speaking or thinking. It's not recorded. It doesn't mean he wasn't speaking or thinking. और ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोल नहीं रहा था या कुछ सोच नहीं रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने कुछ भी बाइबल में उसके बारे में बताया नहीं है। But when you and I go through testing, half of China has heard about it. और आप में से आप और मैं जब परीक्षा से होकर गुजरते हैं तो आधे से ज्यादा चाइना जो है इस बात को सुन Every लेता है। WhatsApp group is aware of Anil Jacob's complaints. और अनिल जेकब ने किस परेशानी से होकर गुजर रहा है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में वो पता होगा। Which hospital he visited last year. और किस अस्पताल में वो कल रात को गया था। Every detail of my life is there on social media. Now, there's nothing wrong with that, but what we do is we talk to the wrong people and we advertise the wrong things that God is doing for us by mistake. और सोशल मीडिया में हम अपने जीवन को पूरा जो है पूरी चीजों को लिख देते हैं और हम गलत लोगों को बताते हैं कि हम कैसी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं। Of course, I'm exaggerating, but the basic point is that we are not like Abraham. मैं शायद बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन इस बात को समझें कि हम अब्राहम के जैसे नहीं हैं। And a lot of times, if we do have composure and perhaps we are more restrained, a lot of the times the question we are asking is why. अगर लेकिन हम शांत रह भी जाते हैं, थोड़े गंभीर भी बन जाते हैं, फिर भी हमारे पास ये सवाल होता है क्यों? And especially why me? और खासकर ये सवाल मैं ही क्यों? See, if you think about Abraham's point of view, he didn't come to this place willingly, right? और आप देखें अब्राहम के नजरिए से ये अपने आप से चलकर इस स्थान पर नहीं आया। A couple of chapters back, God called him from the equivalent of Iraq, where Haran is in today's map. और देखें कुछ समय पहले जो है जहां आज का इराक स्थित है उस समय के हरान से उसको बुलाया गया था। And God basically told him just go. He didn't tell him where he had to go. He just told him go. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जाओ, ये नहीं कहा कि कहां जाना है, लेकिन जाने के लिए बोला। And he basically walked on foot the equivalent of maybe 2000 kilometers. और हो सकता है कि वो अपने पैरों पर कम से कम 2000 किलोमीटर से ज्यादा चला हो। And finally he has reached this place and then God is testing him again. और अब वो उस स्थान पर पहुंच चुका है और परमेश्वर उसकी फिर से परीक्षा कर रहा है। But we have no record of Abraham's emotional reaction. और आप देखें अब्राहम का यहाँ पे किसी भी प्रकार से किसी उसके भावनाओं को नहीं दिखाया गया है। So what I believe is a small insight about Abraham is that he maintained his composure during testing. और आप देखें अपनी इस परीक्षा के समय से होकर गुजरते हुए उसने अपने आप में वो गंभीर बना रहा अब्राहम। And now we move closer to the phase of testing. This is pre-test. Now we come closer to the testing itself. और अब जो है वो अपनी परीक्षा के जो समय से होकर गुजरा है उसकी तरफ हम देखेंगे। What do verses 5 and 6 tell us? और छठी और पांचवी छठी आयत हमें क्या बताती है? Abraham's first words are recorded. और यहाँ पर अब्राहम के पहले शब्दों को देख सकते हैं। Verses 5 and 6. Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey, and I and the lad will go over there,
and we will worship and return to you. और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा. So he has been obedient through his actions thus far. और अभी तक अपने कामों में वो आज्ञाकारी बना रहा है. He has honored what God told him in verse 2 by just moving out. और परमेश्वर का उसने आदर किया है आगे बढ़कर, बाहर निकलकर. And he has now come closer to the actual place of testing, right? और- He's very close to it. और जहां पर उसकी परीक्षा होने जा रही है उसके बहुत करीब वो आ चुका है. So something that struck me was two questions that I'm still struggling with. I don't have a straightforward answer. और दो सवाल जो मेरे मन में बार बार आ रहे थे, मेरे पास अभी भी उनका उत्तर नहीं है. Would you say that Abraham's faith was actually expressed first in obedience? क्या आप इस बात को कहेंगे कि विश्वास के द्वारा अब्राहम ने सबसे पहले अपनी आज्ञाकारिता को दिखाया, And after that in words? और उसके बाद उसने अपने काम के द्वारा अपने विश्वास को, आज्ञाकारिता को दिखाया? How do I know Abraham is expressing his faith now in words? और अब वो अपने वचनों के द्वारा विश्वास को प्रकट कर रहा है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? Look at verse 5 very carefully. और 5वीं आयत को बड़े ध्यान से देखें. Look at the words Abraham is speaking. He's speaking to the young man and he says, stay here with the donkey. I and the lad will go over there. And notice this very carefully, very slowly. We will worship, Wow. no problem, and return to you. उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे. How does he know that? वो कैसे जानता है? God told him in verse 2, I want a burnt offering and I want that son to be your burnt offering. दूसरी आयत में परमेश्वर ने कहा कि मुझे एक होम बलि चाहिए और तुम्हारे बेटे को ही तुम होम बलि चढ़ाओ. So there's something going on here that through his words, Abraham is expressing faith in God through his words. और अपने शब्दों के द्वारा अब्राहम जो है अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर स्थापित कर रहा है. The truth is that these words still do not correspond with reality. सच्चाई ये है कि अभी भी जो शब्द हैं वो सच्चाई के साथ मेल नहीं खाते हैं. He hasn't gone. वो अभी तक गया नहीं है. How does he know he's going to come back alive and with his son? और How does he know वो that? कैसे जानता है कि अपने जिंदा बेटे के साथ वो वापस आएगा? Does he know that there is a lamb? और वो जानता भी है कि वहां पर एक मेमना तैयार है. What does he know that you and I don't know? वो ऐसा क्या वो अब्राहम जानता है जिसको आप और मैं नहीं जानते? My submission to you, ladies and gentlemen, is that this is the expression of his verbal faith. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो अपने शब्दों के द्वारा विश्वास का प्रकटीकरण कर रहा है. I have a simple personal understanding, you can call it a personal interpretation about this. When we first act in obedience, in normal situations, we will have the faith to address unusual situations when we are in unusual situations. और हम, मेरी ये व्यक्तिगत समझ है, इसको आप वैसे समझें कि जब हम विश्वास के साथ चलते हैं तो जीवन की विपरीत अवस्थाओं में उस विश्वास को हम प्रकट कर पाते हैं. Abraham had a habit of obeying God. और अब्राहम के अंदर एक आदत थी परमेश्वर की आज्ञा मानने की. That's why he doesn't Wow. talk back to God in verse 2. और इसीलिए जब परमेश्वर उससे कुछ बोलता है तो वो उल्टा जवाब नहीं देता. He just gets up in the morning and starts obeying. That's what वो verse 3 tells us. केवल सुबह उठ जाता है और अपना आज्ञा मानना शुरू कर देता है. So Abraham, when he's in a peculiar situation, is already in a lifestyle of obedience, and he has a deep understanding of who God is. और आप देखें अपने जीवन शैली में अब्राहम जानता है कि परमेश्वर कौन है. That's one reason why the statements he's making in verse 5 actually contradict what God says in verse 2. इसीलिए जो 5वें आयत में हम पढ़ते हैं वो जो परमेश्वर ने कहा है उसके साथ एक विरोधाभास के रूप में मालूम होता है. So God is expecting him to offer his son as a burnt offering. और परमेश्वर चाहता है कि वो अपने बेटे को होम बलि के रूप में चढ़ा दे. Abraham is obeying. और अब्राहम जो है आज्ञा मान रहा है. Abraham has gone. और अब्राहम जा भी रहा है. Abraham is at the place of testing. और वो उस परीक्षा के स्थान पर पहुंच चुका है. But still Abraham says, we are going to go and worship and we will return. तब भी अब्राहम कहता है कि हम आराधना करके वापस आएंगे. Now here's another thing. और अगली बात को समझें. When you're being tested, it will also
likely involve your family, your friends and your Wow. colleagues. It will. और जब आपकी परीक्षा की जाती है तो उसमें आपका परिवार भी, आपके दोस्त भी, आसपास की चीजें भी सम्मिलित हो जाती हैं। That is implied in this passage. और इसी बात को हम इस वचन के भाग में समझने पाए। And still Abraham is pulling forward like a soldier. और तब भी अब्राहम जो है एक सैनिक के समान आगे बढ़ रहा है। So we see now this person who is involved in this testing, Isaac, also starts speaking up. और ये जो व्यक्ति इस परीक्षा से होकर गुजर रहा है वो भी बात करना शुरू कर देता है। You look at verses 7 and 8. और 7वीं और 8वीं आयत में देखें, Isaac spoke to Abraham, his father, and said, "My father." And he said, "Here I am, my son." And he said, "Behold the fire and the wood. Where is the lamb for the burnt offering?" इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? Now notice what's happening here. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। Isaac is asking questions about facts. और इसहाक जो है, जो अवस्था है उसके बारे में सवाल कर रहा है। Abraham answers questions about facts with statements about faith. अब्राहम जो है उसका उत्तर सच्चाई को बताते हुए विश्वास के साथ देता है। Isaac sees the fire and the wood. इसहाक जो है वो लकड़ी और आग को देखता है। Isaac does not see the lamb for the burnt offering. और इसहाक जो है होम बलि के लिए जो भेड़ है उसको नहीं देख पा रहा है। Abraham sees the fire. और अब्राहम तो जो है आग को देखता है। Abraham sees the wood. और अब्राहम लकड़ी को भी देखता है। Abraham also does not see the physical lamb for the burnt offering. और अब्राहम जो है अपनी शारीरिक आंखों से उस भेड़ को नहीं देख पाता है। But the words he speaks are words of loyalty to God the Father. और वो जो शब्द यहाँ पर बोल रहा है वो परमेश्वर के प्रति वफादारी है उसकी। How do we know that? Verse 8. और उसको कैसे देखते हैं? 8वीं आयत, God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. 8वीं आयत, इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। Now, how do you make this useful for you in April 2023? और आप कैसे अप्रैल 2023 में इसको उपयोगी ठहरा सकते हैं? When you are being tested, you will have people in your life like Isaac who will ask you factual questions. और आप जब परीक्षा से होकर गुजरेंगे आपके जीवन में इसहाक के समान लोग होंगे जो आपको आपकी अवस्था से सवाल पूछेंगे। And you cannot contradict those facts. और आप जो है वो जो सच्ची बातें हैं उसको आप काट नहीं सकते। When you are in a place of God's testing, you will be facing conflict. और जब आप परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर के द्वारा तो आप जरूर परेशानी को महसूस करेंगे। Now you might have faith, आपके अंदर विश्वास तो होगा, but in that place of testing, during that place and that phase and those circumstances of testing, what do you actually say and believe? तो आप जब उस परीक्षा से होकर गुजरते हैं, जब आप उस समस्याओं से होकर गुजर रहे होते हैं, आप किस प्रकार के शब्द बोलते हैं, आपका विश्वास कैसा होता है? In verse 8, is there a lamb? 8वीं आयत में क्या वहां पर भेड़ है? There is no lamb. That's a fact. वहां पे कोई भेड़ नहीं है, ये तथ्य है। Okay. You have not progressed from verse 8 to verse 9 yet. You haven't. अभी तक हम 8 से 9वीं आयत में नहीं आए हैं। So in other words, you might have faith, you might have convictions, but you will be still facing people who you love, whom you care about, and they will be putting pressure on you through facts. और हो सकता है कि आपके अंदर विश्वास है, आप बातों को जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन आपके जीवन में ऐसे लोग होंगे जो आपके ऊपर इस बात का दबाव डालेंगे कि ये ऐसा क्यों है, वो सच्चाइयों को, तथ्यों को आपके सामने लाएंगे। So that's why when we look at Abraham and you look at his life thus far, his life was backed up by actions and convictions. इसीलिए जब आप अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो उसका जीवन, उसका विश्वास जो है वो उसके कार्यों के द्वारा प्रकट होता है। He has a track record of obedience. और वो आज्ञाकारी बना रहा है। When God told him go, he went. जब परमेश्वर ने कहा कि जाओ तो वो गया। Okay. When God told him, I will give you a son, how long did God made him wait? और जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा तो कितना समय इंतजार करना पड़ा? 25 years. 25 साल। After 25 years, this is going on. और 25 साल के बाद अब ये हो रहा है। You want to follow this God? क्या आप ऐसे परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं? You think about it. आप सोच लीजिए एक बार। Jesus said, whoever wants to follow me, please count the cost of following me. और परमेश्वर प्रभु ने कहा कि जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो इसकी कीमत को पहचान ले।
Okay, so here you cannot have convictions and avoid testing. और आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके अंदर विश्वास जरूर है लेकिन आप परीक्षा से नहीं होकर गुजरना चाहते। You can't say I have faith and you say like Abraham would do in probably some exaggerated fashion, by faith I speak to this mountain of testing and I say depart in Jesus name. और can you say that? क्या अब्राहम, आप ऐसा नहीं कह सकते अब्राहम के जैसे, या अब्राहम यहाँ पे खड़ा होकर ये नहीं कह सकता मैं विश्वास से कहता हूँ कि ये पहाड़ टल जाए, नहीं, ऐसा नहीं। So you have to be very careful how you interpret the scriptures. Don't jump to spiritual conclusions. Look what's going on. He is being tested. और आप देखें, आप इसी प्रकार एकदम से जो है आत्मिक कंक्लूजन पे ना पहुंच जाएं, आप समझें कि उसको परीक्षा से होकर गुजरना है। Okay, so you can't over spiritualize testing. It is real. और इसीलिए जब परीक्षा से होकर गुजरते हैं उसको ज्यादा आत्मिक ना बना दें, वो सच्चाई है। So now as we step back, we have seen what Abraham actually says and believes. और आप देखते हैं कि यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि अब्राहम क्या देखता है और क्या विश्वास कर रहा है। Let's look at his family. What is inside Isaac? और आप उसके परिवार में देखें, इसहाक के अंदर क्या है। He has a few questions. उसके पास जरूर सवाल हैं। What's inside Sarah? और सारा के अंदर क्या है, We don't know. हम नहीं जानते इसको। What's inside those two servants waiting outside? और जो उसके साथ दो दास चल रहे थे जो बाहर नीचे खड़े हैं, उनके अंदर क्या सवाल है, We don't know. हमें वो भी नहीं पता है। What's inside Abraham? और इन अब्राहम के अंदर क्या है। What's inside Abraham is verse 8, that he knows the God whom he's serving. 8वीं आयत बताती है कि अब्राहम को पता है कि वो जिस परमेश्वर की आराधना करता है, सेवा करता है, वो कार्य को पूरा करेगा। So if you don't have a personal relationship with this vertical God, you will be finished in testing. और सो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के साथ अगर आपका व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है तो आप परीक्षा में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। And the connection between verse 8 and the lifestyle of obedience, being able to rise up early in the morning, carry donkeys, cut wood, they are connected. और जो उसकी जीवन शैली है उसके द्वारा दिखता है, सुबह उठना, लकड़ी को चीरना और आगे बढ़ना, ये सब चीजें जो हैं जुड़ी हुई हैं। So now we move closer to the testing, verses 8 to 14. और आप जो है 8वीं आयत से 14वीं आयत में जो परीक्षा के बिल्कुल हम करीब आ जाते हैं। And the details are disturbing. और यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं वो थोड़ी गंभीर हैं। Now look at verses 9 and 10. और 9वीं और 10वीं आयत में देखें। Now you're at the place of testing. और हम बिल्कुल परीक्षा के स्थान पर हैं। Verse 9 says, they came to the place of which God had told him. Abraham built the altar there, arranged the wood, and bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. सो वह दोनों संग संग आगे चलते गए और वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर ही लकड़ी के ऊपर रख दिया। Verse 10 says, Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. 10वीं आयत बताती है कि और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। When you and I will go through tests, the tests will be ugly. और जब आप और मैं परीक्षा से होकर गुजरते हैं तो वो बहुत ही गलत, बहुत ही गंदे रूप में दिखेंगे। If you're unemployed, the last thing you'll have to go through is a interview with HR. और जब आप किसी नौकरी के ढूंढने के लिए जाते हैं तो आखिरी जो पड़ाव होता है वो एचआर के साथ इंटरव्यू होता They है। are the ones who decided you have to go, but they still want to talk to you. उसने इस बात को ठान लिया कि वो आपको नौकरी पे नहीं रखेंगे, फिर भी आपसे बात करेंगे। And all of your colleagues will have long faces. और जितने भी वहां पे लोग होंगे वो लोग सब जो है बड़े बड़े, जो बहुत ही मुंह सूज रखा होगा उनका। If you're sick and you're ill, it is very smelly, dirty and expensive. और अगर आप बीमार हैं और आप परेशान हैं तो आप जानते हैं कि वो बहुत ही उसमें पैसा खर्च होता है, आप बहुत ही कष्ट से होकर गुजरते हैं। Just go to the emergency room of any hospital and you'll see what people are actually going through. This is not an exaggeration. और किसी भी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आप जाके देख लीजिए किस प्रकार लोग परेशानी और दिक्कतों से होकर गुजरते हैं। So testing will bring out certain details in life that you won't understand or comprehend, or you won't be able to digest also. और हो सकता है कि परीक्षा हमारे जीवन में इस प्रकार के परेशानियों को लेकर आए, तथ्यों को लेकर आए जिसको हम समझ नहीं पाते हों। So faith will not bloom in those conditions. और इसीलिए विश्वास जो है शायद उस समय बढ़ ना पाए। So you have to cultivate faith
so that it can withstand those conditions before it happens. इसीलिए आपको विश्वास को पहले से ही बनाए रखना है, बढ़ाना है कि ऐसी अवस्था में आपका विश्वास बना रह सके। Now I said that Abraham has this great faith in verse 8. और 8वीं आयत में मैंने तो कह दिया कि अब्राहम के अंदर विश्वास, महान विश्वास है। So what is he doing in 9 and 10? अब वो 9वीं और 10वीं आयत में क्या कर रहा है? कर क्या रहा है? What is he doing? What in the world is he doing? अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है? So sometimes when you have faith, you have to do actions that are contradictory to your beliefs in God. और आप जब विश्वास में होते हैं तो आपको ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो परमेश्वर की बात के कारण आपके विश्वास के प्रति विरोधाभास रखते हैं। The faith by which Abraham obeys God includes taking the knife. और जो विश्वास उसका परमेश्वर के ऊपर है उसमें इस छुरी को उठाना भी शामिल है। The faith by which Abraham obeys God lays out the wood. और जिस विश्वास के बारे में अब्राहम जिस विश्वास के साथ वो आगे बढ़ा है उसमें लकड़ी को फैलाना भी जरूरी And है। the faith by which Abraham obeys God takes the knife, and that faith also is moving to move the knife at a very high speed because you want to make a clean cut into the neck of your own son. और जो विश्वास अब्राहम का परमेश्वर के ऊपर है उसमें यह भी शामिल है कि उस चाकू को उठा के बड़ी तेजी से वो अपने बेटे के गले पे ही मार दे कि वो उसको अच्छा एक जो उसके अंदर वो घुस सके। This is faith. और ये विश्वास है। Basically, Abraham is at the end of himself. और यहाँ पर अब्राहम जो है बिल्कुल आखिरी अवस्था में आ चुका है। So only when you really come to that point, when you're completely at the end of all your understanding, that God acts. और आप जब उस बिल्कुल ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि आप बिल्कुल अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, तब परमेश्वर अपने कार्य को The करता distance है। between verse 10 and 11 is a huge distance. और 10वीं और 11वीं आयत में जो दूरी है वो बहुत ही बड़ी दूरी है। And God sometimes only acts after you have come to the end of yourself. और जब आप अपने बिल्कुल आखिरी अवस्था में पहुंच चुके होते हैं तब परमेश्वर अपने काम को करता You है। come to the end of common sense, you come to the end of your options, and you have done the last humanly possible thing in your situation and circumstances. And in the case of Abraham, this is actually raising the knife and plunging it. और आप अपने समझ के अंत में आ चुके हैं। आप अपनी जो भी चुनाव हैं आपके सामने वो खत्म हो चुके हैं। और जो विश्वास अब्राहम के अंदर है वो ये बताता है कि उसको अपना चाकू बड़ी तेजी के साथ अपने बेटे के गले के पास ले जाना है। And this is where the supernatural power of God is manifested very powerful. और यहाँ पर परमेश्वर की दिव्य शक्ति बहुत ही महान तरीके से प्रकट होती है। And the angel speaks to him completely out of the blue saying, Abraham, Abraham. और यहाँ पर एकदम से परमेश्वर का दूत जो है जोर से बोलता है, अब्राहम अब्राहम। Don't stretch your hand out against the lad. Do nothing to him. Now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। And Abraham basically lifts up his eyes and finds a lamb hidden in the thicket. और फिर अब्राहम जो है अपनी नजर को उठाता है तो वहां पर एक कटीली झाड़ी में एक भेड़ को पाता है। And we know how this episode ends. और हम जानते हैं कि ये अध्याय, ये जो वचन का भाग कैसे समाप्त होता Now, है। what do we conclude from this excruciating test that Abraham has been through? और बड़ी दर्दनाक परीक्षा में से हम किन बातों को समझ सकते हैं? Why is God putting him through this really horrible test? और क्यों परमेश्वर अब्राहम को इस कठिन परीक्षा से होकर ले जाता है? My belief is that God is basically testing Abraham's willingness to obey God. और यहाँ पर परमेश्वर जो है अब्राहम की इस बात की परीक्षा ले रहा है कि क्या वो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार है। See, in God's economy, provision is actually not a problem. और परमेश्वर के लिए प्रावधान जो है वो कोई समस्या है ही नहीं। Budget is not a problem for God. और आपका बजट जो है परमेश्वर के लिए कोई समस्या है ही नहीं। A prestigious job for you is not a problem एक for बड़ी God. नौकरी परमेश्वर के लिए कोई समस्या है ही नहीं। Your willingness to obey is what God really cares about. परमेश्वर इसी बात को देखता है कि क्या आप उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं। And that's why his willingness to obey is being tested out, strung like a piece of butter
over 10 pieces of toast. और इसीलिए जो उसके जीवन की जो परीक्षा है, जैसे कि आप डबल रोटी के ऊपर थोड़ा सा बटर 10 के 10 डबल रोटी के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, उस प्रकार किया जा रहा है। He's just being tested and tested and tested. और आप उसकी जो एक के बाद उसकी परीक्षा होती जा रही है। So God is actually examining Abraham about whether he is willing or whether he can pull back. और यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहा है कि क्या वो तैयार है इसकी आज्ञा मानने के लिए या फिर वो पीछे हट जाएगा। So the issue in this chapter is God wants to see if your character and your willingness to obey and your ability to surrender are manifested in your words and your actions. Not words or actions, words and actions. यहाँ पे इस वचन के भाग में हम देखते हैं परमेश्वर आपके चरित्र को, आपका विश्वास और आप कितने तैयार हैं उसकी आज्ञा मानने के लिए, उसकी परीक्षा ली जा रही है। So a lot of times this severe testing is actually impossible to escape. इसीलिए अक्सर जो है इतनी जो बड़ी परीक्षा से हम बच नहीं सकते। And what's inside you comes out. और जो आपके अंदर है वो बाहर आ जाता है। Okay, so that's why one of my favorite test passages in the entire Bible is Psalm 139 verses 23 and 24. You know it very well. Search me, O God, and test me. भजन 139 का जो 23वां भाग है वो मुझे बहुत पसंद है। कहता है कि प्रभु मुझे जांच और मुझे देख मेरे में क्या है, And see if there's any wicked way in me, और देखें कि मेरे अंदर कोई दुष्ट मार्ग है कि नहीं, and lead me in the way everlasting. और उस अनंत काल के मार्ग में मुझे लेके जा। So that's why we love the Psalms of David, right? इसीलिए हमें दाऊद के भजन बहुत पसंद है, Because he knew what was happening inside him. और वो जानता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। And in the same way, Abraham was someone who knew that God cared about what was going on inside. He knew that the outside things are not a big deal for him. और वो इसी प्रकार अब्राहम को पता था कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, बाहर जो चीजें हो रही है उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। And I think the best part of this episode is that God himself tells him that he has passed the test. और सबसे बढ़िया बात इस भाग का यही है कि परमेश्वर खुद उसे बताता है कि तूने परीक्षा में जय प्राप्त करी है। And that's what leads me to the first point, was that God is examining whether we want him or his gifts. तो इसी बात को हम समझने पाए जो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि परमेश्वर ये परीक्षा लेता है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं या उसकी दी हुई आशीषों से प्यार करते हैं। God has no problem giving us blessings. और परमेश्वर की कोई समस्या नहीं है उसको कि वो आपको आशीष दे। But when we convert these blessings into an idol, into things that we worship and we are not willing to let go, then you will have a problem and you might go through tests, but you won't even know that you have failed those tests. लेकिन परेशानी तब खड़ी हो जाती है जब हम इन आशीषों को एक मूर्ति के समान या एक ऐसी चीज के समान बदल देते हैं जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, जिसके साथ ही हम बने रहना चाहते हैं। So that's why in this passage the conclusion is Abraham called the name of that place the Lord will provide. और इसीलिए इस वचन के इस भाग के आखिरी वचन में हम देखते हैं कि इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा, जिसका मतलब है कि परमेश्वर प्रावधान करेगा। So one prayer I often find useful to pray is, oh Lord, please give me the willingness to be willing to obey. और मैं एक प्रार्थना में अक्सर ये करता हूँ कि परमेश्वर मुझे इस बात के लिए तैयार करें कि मैं विश्वास कर सकूं। So sometimes I do find it hard to obey. I'll be very candid about that. और मैं सच बताना चाहता हूँ कि अक्सर मुझे भी आज्ञा मानने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। I find myself like that blind boy's father who spoke to Jesus, said, Lord, I don't have faith. Give me faith to believe. और उस अंधे बालक के पिता के समान मैं भी अक्सर यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे पास विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास दीजिए। And because God is actually the originator of genuine faith, He will answer that prayer. क्योंकि परमेश्वर सच्चे विश्वास का बनाने वाला है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। So I invite you, when you go back home, perhaps reflect on this passage again and also read Hebrews chapter 11 side by side, because that tells you about the result of many other people who went through testing in the same way that Abraham did, and they succeeded. मैं आग्रह करूंगा जब आप लोग घर जाएं, जब आप इस वचन के ऊपर मनन करते हैं तो इब्रानियों 11 जरूर पढ़ें, उसमें देखें कि कितने और भी संत जो हैं वो परीक्षा से होकर गुजरे हैं। So I will close with a brief word of prayer. आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें। Father, we thank you for how truthful your word is to us. परमेश्वर धन्यवाद कि आपका वचन कितना ही सच्चा है हमारे प्रति।
Lord, sometimes the truthfulness of your word is very difficult for us to comprehend. अक्सर प्रभु आपके इस वचन की सच्चाई को समझना हमारे लिए असंभव हो जाता है। Lord, I pray that you would work faith into the hearts of those who have heard this morning. और प्रभु जिन्होंने आपके वचन को आज सुना है उनके अंदर आप विश्वास उत्पन्न करें। May the seed of the word be like those seeds reaching the good soil. और प्रभु तेरे वचन का बीज उस बीज के समान होने पाए जो अच्छी मिट्टी पर गिरता है And give 30, 60 and 100 fold. और जो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आता है, Because you are the Lord of the harvest. क्योंकि परमेश्वर आप ही कटनी के प्रभु हैं। I ask this in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। Amen. Praise be to God.